We have been studying about the components of the yoke. हम जुए के अलग अलग पुर्जों के विषय में सीख रहे थे। ਅਸੀਂ ਜੂਲੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। In order to crucify our flesh, we should take yoke upon ourselves. अपनी शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाने के लिए हमें जुए को अपने कंधे पर रखना, अपने गर्दन के ऊपर रखना है। और अपने शारीरिकता ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਲੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਜੂਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। चढ़ाने के लिए. ਹਾਂਜੀ, ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧੌਣ ਨੂੰ ਜੂਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। Why we carry the yoke? हम जुए को अपने गर्दन के ऊपर क्यों रखकर चलते हैं? ਅਸੀਂ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? In order to crucify or keep the flesh crucified. ताकि अपनी शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाए रखने के लिए, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ शारीरिकता ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗੀ ਰੱਖੀਏ। The first, I told you the components of the yoke we find in Matthew chapter 5, 6, 7 and in other scriptures. मैंने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 और बाकी अन्य वचनों में हम जुए के अलग अलग पुर्जों के बारे में सीखते हैं। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਤੇ 5, 6, 7, 8 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੂਲੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। The number one we studied about the straight gate and the narrow way. सबसे पहला पुर्जा हमने सकेत फाटक और सकराम मार्ग के विषय हमने सीखा है। और ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੀੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭੀੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। And number two we studied about resist not evil. और दूसरा पुर्जा हमने जो देखा है बुराई का सामना नहीं करना है। और दूसरा पुरजा जो ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ कि बुरियां ਦਾ सामना नहीं करना। You should love your enemies. अपने दुश्मनों को प्यार करना है। अपने दुश्मनों ਨੂੰ प्यार करना है। Do good to them that hate you. जो आपसे नफरत करते हैं उनसे भलाई करें। और जो ताड़े तो नफरत करते हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ करो। Bless them that curse you. जो आपको श्राप देते हैं उन्हें आशीष दें। और जो ਤੁਹਾਨੂੰ श्राप ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ है। You allow people to defraud you. और लोगों को आपको लूटने देना है। और ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇਣਾ है। That is the number two portion, number two component. ये जुए का दूसरा पुर्जा है। ये जूले ਦਾ दूसरा पुरजा है। And number three is you are the salt of the earth. और तीसरा पुर्जा है तुम जगत की नमक हो। और तीसरा पुरजा है कि ਤੁਸੀਂ जगत ਦੇ नमक हो। We are the salt of the earth. आप जगत के नमक हो। ਤੁਸੀਂ जगत ਦੇ नमक हो। Now the next portion, next component is Luke 9:23. अगला पुर्जा है लूका 9 का 23। अगला पुरजा है लूका 9 ਦੀ 23। Luke 9:23. लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 23वां वचन। लूका दी अंजील उसका 9 अध्याय उसकी 23 वचन आयत। If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। उसने सबना ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ तो अपने आप ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। Let's pray so that God may give you more grace to understand it. आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको आज रात अपना अनुग्रह दे ताकि आप वचन की गहराई को समझ सकें। आइए ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ वचन समझ ਸਕੀਏ। Father, thank you for this word. पिता तेरे वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ वचन ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Holy Spirit, you are the teacher. पवित्र आत्मा आप हमारे सिखाने वाले हैं। पवित्र आत्मा तू ਸਾਡਾ ਸਿਖਾਉਣ वाला है। Teach us. आप हमें सिखाएं। तू ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ। In Jesus' name. यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। Here the number one word is to deny ourselves. और इधर जो सबसे पहला विषय है अपने आपे से इनकार करना है। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। This subject I have been teaching you for the last 3-4 years continuously. ये विषय मैं पिछले 3-4 साल बराबर आपको सिखाता आया हूँ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। So I am not going to teach much about it again. और इसलिए मैं वो विषय को आगे और सिखाने नहीं जा रहा। मैं ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। If you are a child of God, you must overcome yourself.
अगर आप प्रभु के परमेश्वर के संतान हैं तो आपको अपनी खुदी के ऊपर जय पाना है। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। I already told you to see the chart here. मैंने आपको पहले ही बताया है, उधर साइड बगल में एक चार्ट लगाया हुआ है। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। I believe all of you are visiting that chart. मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग आए सबने जाकर वो चित्र को देखा है। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। There is also Mr. Self. उधर स्वयं या खुद ही बोलकर श्रीमान भी है। और उधर खुदी बोल के श्रीमान भी है। So you must overcome yourself. आपको अपनी खुदी पर जय पाना है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। Quickly I'll read 1 or 2 words and go forward. मैं जल्दी से 1-2 वचन पढ़ूंगा आपके लिए और आगे बढ़ूंगा। और मैं जल्दी 1-2 वचन पढ़ांगा फिर आगे बढ़ांगा। Philippians chapter 2 verse 4. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 4 वचन। और फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत है। Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करें। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ। So this verse is self-explanatory. I am not going to explain it more. ये वचन अपने आप को विवरण देता है, इसलिए मेरे को इसका विवरण देने की आवश्यकता नहीं। ਇਹ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। Some people self is very difficult to be removed. कई व्यक्तियों के अंदर उनकी खुदी को निकालना बहुत मुश्किल काम है। और कई ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। I have seen practically the lives of several people. The self is so strict, stick to it. To them it's looks to be impossible to remove it. मैंने कई व्यक्तियों के जीवनों को देखा है, उनका खुदी इतना ढीठ है कि उनके अंदर से खुदी निकलना असंभव जैसा लगता है। और मैं कई मनुष्यों ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, कई व्यक्तियों ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ है कि जिन्हां ਦੇ अंदर खुदी इतनी ढीठ है जो ਕੱਢਣੀ बड़ी ही औखी लगती है। This self will take you to hell. और ये खुदी ही आपको नरक की ओर घसीट कर ले जाएगा। ये खुदी ही तानु नरक दे विच घसीट के ले जाएगी। Jesus Christ very plainly said, unless you deny yourself, you cannot be my disciple. प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा, जब तक आप अपने खुदी को त्यागते नहीं हैं तब तक आप मेरे चेले नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा साफ तरीके नाल आख्या, जिन्नी देर तक तुसी अपनी खुदी नु त्यागदे नहीं उन्नी देर तक मेरे चेले नहीं बन सकते। You may be a good man. आप एक अच्छे व्यक्ति होंगे, तुसी एक चंगे व्यक्ति होवोगे। You may not be a drunkard. आप शायद नशा नहीं करते हैं, हो सकता तुसी नशा नहीं खांदे होवोगे। You may not be an adulterer. शायद आप व्यभिचारी नहीं होंगे, शायद तुसी व्यभिचारी नहीं होवोगे। You may not be loving money. शायद आपको धन दौलत से प्यार नहीं है, शायद तानु धन दौलत नाल प्यार नहीं है। But yet if you love yourself more, that is self. लेकिन यदि आप अपने आप से ज्यादा प्यार करते हैं तो वही खुदी है। और जेकर तुसी अपने आप नु ज्यादा प्यार करदे हो ओही खुदी है। The people who are with self, they will have self pity. जो व्यक्ति खुदी से भरे रहते हैं उनको अपने ऊपर ही दया आती है। और जो लोग खुदी दे नाल भरे रहंदे हन उन्हां नु अपने आप उत्ते ही तरस आउंदा है। They will start crying for themselves. वो अपने लिए ही कई बार रोने लगते हैं। वो अपने लिए कई बार रोंदे रहंदे हैं। When they cry for some time, they are satisfied. और थोड़ी देर अपने लिए रोने के बाद उन्हें बड़ी तसल्ली आ जाती है। और थोड़ी देर अपने लिए रोन तो बाद उन्हां नु बड़ी तसल्ली आ जाती है। There are so many items for which we should cry before the Lord. हमें परमेश्वर के सामने कितने और विषयों के लिए प्रार्थना करना है, आंसू बहाना है। असी परमेश्वर दे सामने और किन्ने विषयां दे लिए प्रार्थना करनी, अंजू बहाने हन। We have to cry for the perishing soul. हमें नाश होने वाली आत्माओं के लिए आंसू बहाना है। असी नाश होने वालियां आत्मावां दे लिए अंजू बहाने हन। But the people who are with self will cry for themselves because they love themselves more. लेकिन जो लोग खुदी से भरे हुए हैं वो अपने लिए ही आंसू बहाते हैं क्योंकि उनको अपने ऊपर ही तरस आती है। पर जो लोग खुदी दे नाल भरे हुंदे हन वो अपने लिए ही अंजू बहाउंदे हन क्योंकि उन्हां नु अपने आप उत्ते ही तरस आउंदा है। How can you escape from this self? आप ऐसी परिस्थिति में अपनी इस खुदी से कैसे बच सकते हैं? तुसी किस तरह तुसी इस हालत विच किस तरह अपनी खुदी तो बच सकते हो? 2 Corinthians chapter 5 verse 15. दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 15वां वचन। और दूसरा कुरिन्थिया उसका 5 अध्याय उसकी 15 आयत।
and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ਔਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਠਿਆ। So, if you believe Jesus Christ died for your sins, यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आपके पापों के लिए मरा, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਿਆ, then you should not live for yourself. फिर आपको अपने लिए नहीं जीना चाहिए। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। But if you start thinking about yourself, when Jesus Christ died for us, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरे, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ, we should not live for ourselves. अब हमें अपने लिए नहीं जीना है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। If you in Jammu, in my small bedroom, और जम्मू there's a small board written. जम्मू में जहां मैं रहता हूं उधर मेरे कमरे में एक छोटे से पटिए के ऊपर एक विषय लिखा हुआ है। जम्मू में जहां मैं रहता हूं उधर एक छोटे से पटिए के ऊपर एक विषय लिखकर मैंने टांगा है। ਔਰ ਜੰਮੂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। In my bedroom. मेरे सोने के कमरे में मैंने लिख कर रखा है। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Do not say माइक के आप नस्तिक में नहीं दूर रहना ताकि शब्द क्लियर हो जाए। In that it is written, there's a day A.M. Samuel died. उस पट्टिया में मैंने लिख कर रखा है कि एक दिन था जिस दिन A.M. सैमुअल मर गया। और उस पट्टी ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ A.M. ਸੈਮੂਅਲ ਮਰ ਗਿਆ। A.M. Samuel died for his opinions. A.M. सैमुअल अपने विचारों के लिए मर गया। A.M. ਸੈਮੂਅਲ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। A.M. Samuel died for his taste. A.M. सैमुअल अपने स्वाद के लिए मर गया। A.M. ਸੈਮੂਅਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। A.M. Samuel died for his personal opinions. A.M. सैमुअल अपने व्यक्तिगत विचारों के लिए मर गया। A.M. ਸੈਮੂਅਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। A.M. Samuel died for the appreciation from people. A.M. सैमुअल दूसरों के प्रशंसा के लिए मर गया। A.M. ਸੈਮੂਅਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। I written several things like that. ऐसे मैंने उस पट्टिए में अलग अलग विषय लिख कर रखे हैं। मैं इस तरह उस तख्ती ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ हैं। Why I keep it in front of me? मैंने उसको अपने सोने वाले कमरे में मेरे सामने हमेशा क्यों रखा है? मैं ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? Only Christ lives in me. क्यों मैं हमेशा याद रखूं मसीह केवल मेरे में जीवित रहता है। और मैं इस गल ਨੂੰ याद रखा कि मसीह ही केवल मेरे ਵਿੱਚ जिंदा रहता है। No preference for A.M. Samuel's opinion. अब A.M. सैमुअल के विचारों के लिए कोई पहला स्थान नहीं। और A.M. ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ नहीं। No preference for A.M. Samuel personal welfare. अब A.M. सैमुअल का व्यक्तिगत भलाई के लिए कोई स्थान नहीं। और A.M. ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ नहीं। No opportunity for the opinions of A.M. Samuel. अब A.M. सैमुअल के विचारों के लिए कोई स्थान नहीं। और A.M. ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਸਤੇ कोई स्थान नहीं। So only Christ lives in me. सो केवल मसीह ही मुझ में है। केवल मसीह ही मेरे विच है। So whenever my personal interest come, और जब कभी मेरा व्यक्तिगत विचार भलाइयों की बात आती है, जद कदे मेरे निजी जीवन का कोई विचार भलाई की गल आउंदी है, I look on that board. और मैं उस पट्टिए की ओर देखता हूँ। मैं उस पट्टी दे वाल वेखदा हां। You have died for yourself. और मैं कहता हूँ तू तो अपने लिए मर गया है। मैं कहना तू तो अपने लिए मर गया है। So what Paul says, पौलुस क्या कहता है? पौलुस की कहता है Galatians 2:20. गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20वां वचन। और गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 20 आयत। I am crucified with Christ, nevertheless I live, not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है।
जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਤੇ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 1 Corinthians 6:19 and 20 we read like this. पहला कुरिन्थी 6 का 19 और 20 में हम ऐसे पढ़ते हैं, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ 6 ਦੀ 19 ਤੇ 20 ਐਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, You are bought with a price. आपको कीमत देकर खरीदा गया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Therefore serve God with your body. इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की सेवा करें। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। If you live in yourself, यदि आप अपने लिए जियोगे तो, if you live in yourself, यदि आपका खुद ही आप में जीता है तो, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ Christ cannot live in you. मसीह आपके अंदर जी नहीं सकता। ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। You decide either Christ should live in you or you should live in you. अब आपने फैसला करना है, या तो मसीह मेरे में जिएगा या तो मेरी खुद ही मेरे अंदर जिएगी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇਗੀ। Not 50% Christ and not 50% you. ऐसा नहीं कि 50% मसीह और 50% मेरी खुद ही। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 50% ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਤੇ 50% ਮਸੀਹ। You have to decide who should live in you. अब आपने फैसला करना है आपके अंदर रहना किसने है। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। Christ should live in you or you live in you. या तो मसीह मेरे में जिएगा या तो मेरी खुद ही मेरे में जिएगा। आप ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਜੀਵਾਂਗਾ। What Paul says, पौलुस क्या कहता है, ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? he died for us. वो हमारे लिए मर गया, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ, So I should live for him. इसलिए अब मुझे उसके लिए जीना है। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ। Christ should live in me. अब मसीह यीशु ने मुझ में जीना है। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। Again Galatians 2:20 we read. गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20वां वचन दोबारा पढ़ते हैं। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 20 ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਤੇ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। I pray to Jesus Christ like this. I pray to Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह से ऐसे प्रार्थना करता हूँ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, Lord Jesus, my eyes are your eyes. प्रभु यीशु मेरी आंखें अब तेरी आंखें हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। You see through my eyes. अब तू मेरी आंखों के द्वारा दुनिया को देख। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ। Jesus, my tongue is your tongue. प्रभु यीशु मेरी जबान अब तेरी जबान है। प्रभु यीशु मसीह मेरी जुबान तेरी जुबान है। You speak to the world through my tongue. अब मेरी जबान के द्वारा तू इस संसार से बात कर। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। Jesus, my ears are your ears. प्रभु यीशु अब मेरी काने अब तेरे काने हैं। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਹਨ। You hear the things of the people through these ears. प्रभु ये संसार की जो भी बातें हैं तू इन कानों से सुन। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ। Lord Jesus, my hands are your hands. प्रभु यीशु मेरे हाथ अब तेरे हाथ हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹਨ। You work through these hands. अब इन हाथों से तू काम कर। ਔਰ
ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ। Jesus, my legs are your legs. प्रभु यीशु मेरे पैर अब तेरे पैर हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਹਨ। You walk through the people प्रभु through my leg. प्रभु मेरे पैरों को लेकर तू अपने लोगों के बीच में चल। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। Lord, my brain is your brain. प्रभु मेरा दिमाग अब तेरा दिमाग है। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। You use this brain and think about the people. प्रभु मेरे दिमाग को इस्तेमाल करके तू अपने लोगों के बारे में चिंता कर। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ। Then I don't find anything to pray for myself. अब इतनी बातें प्रार्थना करने के बाद अब मैं अपने लिए प्रार्थना करने के लिए मेरे पास कोई विषय नहीं रहा। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, कोई विषय नहीं। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। समय नहीं है तो what? There is nothing for me to pray for myself. अब मेरे लिए खुद के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई विषय नहीं रहा। ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Jesus, see through my eyes. प्रभु यीशु मेरी आंखों के द्वारा तू देख। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਵੇਖ। Jesus, hear through my ears. प्रभु यीशु मेरी कानों के द्वारा तू सुन। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਸੁਣ। Jesus, speak through my tongue. प्रभु मेरी जबान के द्वारा तू बात कर। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। Jesus, work with my hands. प्रभु यीशु मेरी हाथों के द्वारा तू काम कर। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ। Jesus, walk through my leg. प्रभु यीशु मेरे पैरों के द्वारा तू चल। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਚੱਲ। Jesus, think through my brain. प्रभु यीशु मेरे दिमाग के द्वारा तू चिंता कर, विचार कर। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰ। When I say all these things, there is nothing left for me to pray for myself. जब इतनी बातें मैंने प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया और प्रार्थना करता हूं तो मैं अपने लिए प्रार्थना करने के लिए मेरे पास कोई विषय नहीं रहा। ਜਦ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। That's what Paul says. यही है प्रेरित पौलुस जो विषय कहता है। ਔਰ ਇਹੀ ਰਸੂਲ ਪੌਲਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। Christ live in us. मसीह यीशु हम में जिए। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ। First century saints given themselves totally to Christ, therefore Christ was living in them. पहले शताब्दी के विश्वासियों ने अपने आप को, अपने शरीर को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए सौंप दिया था, इसलिए मसीह यीशु उनमें जीता था। और पहली सदी ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। Therefore the world could see Christ. इसलिए उस समय की जगत मसीह यीशु को सामने देखती थी। और ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਗਤ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। Always you think whom people see through you. अब आपने हमेशा सोचना है दुनिया मुझ में किसको देखती है। और ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। In my room there is a mirror. मेरे कमरे में मैंने एक आईना लगा कर रखा है। मैं अपने कमरे ਵਿੱਚ ਇੱਕ शीशा दर्पण ला के रखा है। And I look at that mirror and speak to myself several times. मैं कई बार उस आईने में अपने शक्ल को देखकर मैं अपने से कहता हूं। और मैं कई बार उस शीशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ रूप ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ, Samuel, whom world is seeing through you? हे सामुएल, ये संसार तुझ में किसको देखता है। हे सामुएल, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। I again often ask this question. मैं कई बार ये सवाल अपने से पूछता हूं। मैं कई बार ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। Is Samuel whom the people of the world see in you? हे सामुएल, through you. हे सामुएल, इस संसार के लोग तेरे द्वारा किसको देखते हैं। हे सामुएल, इस संसार के लोग तेरे द्वारा किन्नू वेखदे हन। Do they see Jesus or they see Samuel? क्या ये दुनिया के लोग तेरे द्वारा यीशु मसीह को देखते हैं या एम सामुएल को देखते हैं। कि इस दुनिया के लोग तेरे द्वारा यीशु मसीह नु वेखदे हैं या तेनू वेखदे हन। Do they see Jesus or A.M. Samuel? क्या वो यीशु मसीह को देखते हैं या वो एम सामुएल को तेरे द्वारा देखते हैं। और ओ की ओ यीशु मसीह नु तेरे द्वारा वेखदे हैं या एम सामुएल नु तेरे विच वेखदे हन। I often take this issue before God.
और ये विषय मैं कई बार परमेश्वर के सामने लेकर जाता हूँ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। Lord, through this incident, whom the world has seen, प्रभु, इस घटना के द्वारा इस संसार के लोगों ने मेरे द्वारा किसको देखा? ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? if I find that they have seen me, then I confess before the Lord and cry. अगर मुझे मालूम चलता है कि संसार ने उस घटना के द्वारा मुझे देखा है, तो मैं परमेश्वर के सामने गलती को मानता हूँ। और जब मैंने पता लगता है कि इस घटना के द्वारा संसार ने मैनू वेख्या, तो मैं परमेश्वर दे अगे उस गलती नु मानदा हां। Then I say, Lord, the body which I given to you, I have taken for myself, forgive me. मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, जो शरीर मैंने तेरे हाथ में सौंप दिया था, इस घटना के समय मैंने उसको अपने हाथ में वापस ले लिया था, तू मुझे कृपया करके क्षमा कर। और मैं प्रभु दे के प्रार्थना करता कि प्रभु, जो शरीर मैं तेरे अगे अर्पण कीता सी, इस घटना के द्वारा उसनु मैं तेरे कोलों ले लिया, इसलिए प्रभु मैनू माफ कर। When I discipline people, when I shout at people, again I come into my room and ask this question to myself. कई बार मेरे को लोगों को डांटना पड़ता है, ताड़ना देनी पड़ती है, तो डांटने के बाद मैं अपने कमरे में आकर अपने आप से प्रभु के सामने मैं ये विषय पूछता हूँ। और कई बार मैनू लोगों को डांटना पैंदा, झिड़कना पैंदा, ताड़ना देनी पैंदी है, फिर मैं अपने कमरे विच आके उस विषय के बारे प्रभु कोलों पूछता हां। Then I ask Jesus like this. मैं प्रभु यीशु मसीह से पूछता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह कोलों पूछता हां। When I rebuking the people, are they seeing my anger or you? हे प्रभु, मैं जब दूसरों को डांटता हूँ या ताड़ना देता हूँ, तब लोग क्या मुझे देखते हैं या तेरे को देखते हैं? हे प्रभु, जब मैं लोगों को झिड़कदा हां, डांटदा हां, उस समय लोग मैनू वेखदे आ या तेनू वेखदे है? Are they seeing my anger or you? क्या वो मेरे गुस्से को देख रहे हैं या तेरे को देखते हैं? और की वो मेरे गुस्से नु वेखदे हन या तेनू वेखदे हन? If I find that they are seeing my anger, then I confess before the Lord. अगर मुझे मालूम चलता है कि उन लोगों ने उस घटना के द्वारा मेरे गुस्से को देखा है, तो मैं परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मानता हूँ। और जब मैंने पता लगता है कि उस घटना या गुस्से के द्वारा इस घटना के द्वारा लोगों ने मेरे गुस्से नु वेख्या है, तब मैं उस गलती नु परमेश्वर के सामने मानदा हां। Then sometime I ask forgiveness from the people whom I rebuked. और कई बार जिन लोगों को मैंने डांटा है, उनसे मैं गलती मानता हूँ, माफी मांगता हूँ। और कई बार जिन्ना लोगों नु मैं झिड़कदा हां, उन्हां कोलों गलती मानदा, माफी मांगदा हां। Why? क्यों? This body has been purchased by Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर इस शरीर को खरीद लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मोल दे के शरीर नु खरीद लिया है। He had to pay a heavy price. इसकी शरीर को खरीदने के लिए एक भारी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ी। इस शरीर नु खरीदने वास्ते उसनु वड्डी रकम देनी पई। His hands were nailed. उनके दोनों हाथों पे कील ठोका गया था। उसके दोनों हाथों विच कील ठोके गए सन। His face was full of spit. उनका मुंह पूरा थूक से भरा था। उसका मुंह पूरा थुका नाल भरिया सी। His head was planted with thorns. उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया था। उसके सिर दे ते कंडियां दा ताज रखा गया सी। His back was swept with Roman whips. उनका पीठ रोमी कोड़े से फाड़ दिया था। उसकी पेट रोमी कोड़ियां दे नाल पाड़ी गई सी। He was hanged on 3 nails. 3 किलो पर ठोक कर क्रूस पर टांगा गया था। 3 किलो ते ठोक के उसनु सलीब ते टंगिया गया सी। My body was under the custody of Satan. मेरा शरीर शैतान की गुलामी में था। मेरा शरीर शैतान दी गुलामी विच सी। He was putting all his desires in me. शैतान अपनी सारी इच्छाएं और अभिलाषाएं मेरे शरीर में कूट-कूट कर भर रहा था। शैतान अपने सारे विषय कामनावां इच्छावां मेरे अंदर कोट-कोट के भरदा सी। Satan was putting all the filth in me. शैतान अपना सारा गंद मेरे अंदर भर रहा था। शैतान अपना पूरा गंद मेरे अंदर भर रहा सी। But when I looked on the cross, लेकिन जिस क्षण मैंने क्रूस की ओर अपनी आंखें उठाई और जिस वक्त मैं सलीब दी हालत वाला अपनी नजर उठाई, and I cried, Lord, save me. और मैंने जब पुकारा, हे प्रभु तू मुझे बचा ले, जब मैं पुकारा प्रभु मैंने बचा ला, Then he delivered me. तब उसी क्षण
उसने मुझे छुड़ा दिया। उसने उससे बल मैनू छड़ा लिया। What Satan was doing? शैतान क्या कर रहा था? शैतान की कर रहा सी? Putting all desire in me. मेरे अंदर अपनी सारी अभिलाषाएं विचारों से भर रहा था और मेरे अंदर अपनी सारियां लालसावां विचार भर रहा सी। I was enjoying the pleasures of the world. मैं संसार का ऐश और आराम का मजा ले रहा था। मैं संसार दा ऐशो आराम दा मजा ले रहा सी। Slowly slipping into lake of fire. और धीरे धीरे मैं आग की बड़ी झील की ओर खिसक रहा था। और मैं आस्ते आस्ते आग दी झील दे वाल जड़ा हो जा रहा सी। Enjoying the pleasures of the world, lust of the world. I was slipping into the lake of fire. संसार का ऐश और आराम का अभिलाषाओं का मजा लेते हुए आग की उस बड़ी झील की ओर मैं खिसकता जा रहा था। और संसार दी ऐश प्रस्ती दी मौज मस्ती कर दे आग दी झील दे वाल मैं फिसलदा जा रहा But सी। when I looked on the cross and cried, लेकिन जब मैंने क्रूस की ओर दृष्टि करके चिल्लाया, पर जदों मैं सलीब दे वाल नजर करके चलाया, Jesus bought me. प्रभु यीशु ने दाम देकर मुझे खरीद लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मोल दे के मैनू खरीद लिया। Now this body belongs to Him. अब ये शरीर का मालिक वो है। हुण इस शरीर दा मालिक वो है। He has the right to use this body. उसको ये शरीर इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। इसनु इस शरीर नु वर्तन दा पूरा अधिकार है। He should see through this eye. उसने इन आंखों के द्वारा जगत को देखना है। उसने इन आँखां दे द्वारा जगत नु देखना है। He should hear through this ear. अब उसने इन कानों के द्वारा संसार की आवाजें सुननी है। हुण इन कन्नां दे द्वारा उसने संसार दी आवाज सुननी है। He should speak through these lips. अब उसने इस जबान के द्वारा संसार से बात करना है। हुण उसने इस जबान दे द्वारा संसार नाल गल्लां करनियां है। He should work with his hands. अब इन हाथों के द्वारा उसने काम करना है। हुण इन हाथां दे द्वारा उसने काम करना है। He should walk with his legs. अब इन पैरों के द्वारा उसने इस संसार में चलना है। हुण इस पैरां दे द्वारा उसने संसार में चलना है। Kneel down and pray. घुटना टेके और प्रार्थना करें। गोडे टेक के आप प्रार्थना करें। Give your body to the Lord. अपने शरीर को संपूर्ण रीति से अपने प्रभु के हाथ में सौंप दें। अपने शरीरां नु पूरी रीति दे नाल अपने प्रभु दे हत्थ विच दे दईए। Give your body completely to the Lord. अपने शरीर को संपूर्ण रीति से उसके प्रभु के हाथ में सौंप दें। और अपने शरीरां नु पूरी रीति दे नाल अपने प्रभु दे हत्थ विच दे दईए। Let Christ live in you. मसीह को आपके अंदर जीने दें। मसीह नु अपने अंदर जीण दियो।
Remember, we have got very little time to show Christ through us. प्यारे अजीजों, याद रखें, हमारे सामने इस संसार को मसीह दिखाने के लिए समय बहुत कम है। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਸੀਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। From this convention, when you go back to your places, go with this dedication. Lord, let Christ be seen through me always. जब आप इस कन्वेंशन के बाद अपने स्थानों में जाते हैं, इस समर्पण के साथ जाएं, प्रभु जब मैं वापस जाऊंगा, मेरा इलाका मेरे द्वारा मसीह यीशु को देखेगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਸ ਅਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। Let mother-in-law see in me Christ. प्रभु मेरी सास मेरे अंदर मसीह यीशु को देखे। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ। Daughter-in-law may see Jesus in me. मेरी बहू मेरे अंदर मसीह यीशु को देखें। ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ। The enemies, the neighbors who are living around me and working as an enemy, let them see Christ in me. मेरे पड़ोसी जो मेरे चारों तरफ मेरे दुश्मन की तरह रहते हैं, वो मेरे अंदर मसीह यीशु को देखें। ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ। People who are raising allegation against me and cursing me, help them to see Christ in me. प्रभु जो लोग मेरे विरोध में आरोप उठाते हैं, जो मुझे श्राप देते हैं, ललकारते हैं, वो मेरे अंदर मसीह यीशु को देखें। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। Lord, through sickness, let people see Christ in me. प्रभु बीमारी के समय, बीमारी के द्वारा लोग मेरे अंदर मसीह यीशु को देखें। ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ। Lord, when I go through hunger due to lack of money, let them see Christ in me. प्रभु पैसे की कमी के कारण मैं जब भूखापन से जाता हूँ, ऐसी परिस्थिति में लोग मेरे अंदर मसीह यीशु को देखें। ਪ੍ਰਭੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ। Lord, I lived for the desires of my body for long enough. प्रभु मैंने अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए बहुत समय बर्बाद किया है। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। Now, Lord, every moment, every second, for your desire to be fulfilled. प्रभु मेरी जिंदगी के बाकी बचे क्षणों में तेरी इच्छा को मेरे शरीर के द्वारा पूरा करने के लिए मैं अपने आप को सौंपता हूँ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਲ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। So, the other component of the yoke is denying self. जो जुए का अगला पुर्जा है, अपने स्वयं को, अपने खुदी को त्यागना है। ਜੂਏ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੁਰਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। Then along with that, carry the cross daily. और उसके साथ साथ अपना क्रूस हर रोज उठाकर चलना है। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। The cross is not for you, cross is for the flesh. जो क्रूस है वो आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके अंदर की शारीरिकता के लिए है। ਉਹ ਜੋ ਸਲੀਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। Flesh will never love cross. आपके अंदर की शारीरिकता को कभी भी क्रूस प्यारा नहीं है। और ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਦੀ जो ਸਰੀਰਕਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲੀਬ ਪਿਆਰੀ। क्रूस का मतलब ये नहीं कि लकड़ का क्रूस या चांदी का क्रूस जो गले में टांगे। क्रूस का मतलब है कष्ट। और ਸਲੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਲੀਬ ਲੈ ਕੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਸਲੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ। So flesh never loves suffering. आपके अंदर की शारीरिकता को कभी भी कष्ट अच्छा नहीं लगता। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। But cross suffering is required
daily to keep the flesh on the cross. लेकिन आपकी शारीरिकता को प्रतिदिन क्रूस पर टंगे रहने के लिए कष्ट प्रतिदिन चाहिए। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਰਕਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Through suffering, four purposes are achieved. कष्ट के द्वारा आपके जीवन में 4 उद्देश्य पूरे होते हैं। ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 4 ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Number one is your personal sanctification. सबसे पहला काम जो है वो आपका व्यक्तिगत शुद्धिकरण पूरा होता है, उद्धार का काम पूरा होता है। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Number two, you become a witness of comforting others. दूसरी बात है कि आप दूसरों के लिए तसल्ली का कारण बनते हैं। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। Number three, you suffer to invest in the kingdom of God. आप तीसरी बात, आप कष्ट के द्वारा परमेश्वर के राज्य में निवेश करते हैं। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। नहीं, हिस्सा डालते हैं। ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। Now fourth thing, you become the heir through suffering. चौथी बात, कष्ट के द्वारा आप वारिस बनते हैं। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। Knowing all these purposes, Satan brought new doctrine saying suffering is a curse. ये 4 मुख्य फायदे कष्ट के द्वारा होंगे सोचते हुए शैतान ने नया उपदेश लाया है कि कष्ट सब हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, सब श्राप है। ਔਰ ਇਹ 4 ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ नया उपदेश ਨਵਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ कि कष्ट श्राप है। ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ श्राप ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਨਤ ਹੈ। I don't think in northern India it's not that much. मुझे नहीं मालूम कि ये उपदेश उत्तर भारत में इतना चला है। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। But in Kerala, in southern India, in America, Canada, all these places this is going on. लेकिन दक्षिण भारत में, कनाडा में, अमेरिका में ये उपदेश भरा पड़ा है। ਔਰ ਪਰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। So through suffering, four things. कष्ट के द्वारा 4 काम होते हैं। ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 4 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Let us see quickly the personal sanctification. सबसे पहली बात, हमारा व्यक्तिगत उद्धार का काम के बारे में अपन जल्दी से देखें। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। Personal sanctification. हमारा पवित्र व्यक्तिगत शुद्धिकरण का काम। ਔਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ। Hebrew chapter 12 verse 6 to 11. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 6 से 11। ਔਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 6 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ। To save time, read in Hindi and Punjabi only. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 6 से 11। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी 6 तो लेके 11 तक। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? वह तो अपने अपने समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। क्यों जो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਓ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੋ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਮਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਪਿਓ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਕ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਜੀਵੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਤਾੜਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾਏ ਗਏ ਹਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਇਕ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Here verse 10 and 11 says, through chastening we get his nature in us. हम उसके 10 और 11 वचन से पढ़ते हैं, उसकी ताड़ना के द्वारा हमारे अंदर उसका स्वभाव आता है। और उसकी 10-11 आयत पढ़ते हैं कि उसकी ताड़ना के द्वारा उसका साडे अंदर स्वभाव आंदा है। We become partakers of his holiness. हम उसके पवित्रता के भागी हो जाते हैं। ਅਸੀਂ उसकी पवित्रताई ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। And it also says in the beginning, this chastening will be painful. और ये आगे भी वचन कहता है कि हर प्रकार की ताड़ना आरंभ में आनंद की नहीं है। और ਅੱਗੇ वचन ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Painful. वो शौक की बात दिखाई पड़ती है। ਉਹ ਸੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। But when you experience it, then it gives you comfort. लेकिन जब आप सहते सहते पक्के हो जाते हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ हमें तसल्ली मिलती है। और पर ਜਦੋਂ ਸਹਿੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Some of us run away from suffering. हम में से बहुत कई ऐसे हैं जब कष्ट आता है तो भागते हैं उससे। और ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। When you run away, then God uses another methods. जब आप भागते हो तो परमेश्वर दूसरे तरीके इस्तेमाल करता है। जब ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਵਰਤਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Ezekiel chapter 22 verse 10 to 18 to 20. एजेकियल की भविष्यवाणी 22वां अध्याय 18 से 18 to 20. 18 से 20 तक। और हिजकियल की किताब उसका 22 दिया उसकी 18 तो लेके 20 तक। Please read to save time. Read in Hindi and Punjabi only. हे मनुष्य के संतान, इस्राएल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। वे सब के सब भट्टी के बीच में पित्तल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए। वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यूं कहता है, इसलिए कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान बन गए हो, अतः देखो मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूं। जैसे लोग चांदी, पित्तल, लोहा, शीशा और रांगा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग लगाकर पिघलाए, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप की जलजलाहट से इकट्ठा करके वही रखकर पिघाल दूंगा। हे आदमी दे पुत्र, इस्राएल दे घराने मेरे लिए मैल हो गया है। वो सारे दा सारा पित्तल, टीन, लोहा अते सिक्का है जो भट्टी विच हन, वो चांदी दी मैल हन। इसलिए प्रभु यहोवा इउं फरमाउंदा है, तुसी सारे मैल बन गए हो। इसलिए वेखो मैं तुहानू यरूशलेम विच इकट्ठा करांगा जिवें वो चांदी, पित्तल, लोहा, सिक्का ते टीन भट्टी विच इकट्ठे पाउंदे हन अते उन्हां नू अग नाल ताउंदे हन तां जो उन्हां नू पंगला देन। उदा ही मैं अपने कहर अते क्रोध विच तुहानू इकट्ठा करांगा अते तुहानू उत्थे रख के पंगरावांगा। हाँ, मैं तुहानू इकट्ठा करांगा अते अपने कहर दी अग विच तुहानू तपावांगा अते तुसी उस विच पंगर जाओगे। जिद्दां चांदी भट्टी विच पंगरी जांदी है उदा तुसी उस विच पंगलाए जाओगे। तां तुसी जानोगे मैं यहोवा ने अपना कहर तुहाडे ते पाया है। I told you